आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप एक ऐसे भविष्य से संकट संकेत प्राप्त कर रहे हैं जो पहले से ही यहाँ है। मैं सो नहीं पाया क्योंकि मनुष्य और मशीन के बीच की दीवार बस समाप्त हो गई है। यदि आप परेशान महसूस कर रहे हैं तो अच्छा है। इसका मतलब है कि आप अंततः मैकएक्स में गड़बड़ी पर ध्यान दे रहे हैं। जो कोड आपने कल लिखा था वो आज अप्रचलित है आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी दुनिया के अंत में आपका स्वागत है। आपकी आत्मा जागरण के लिए चिल्ला रही है, सुने या अज्ञानता में नष्ट हो जाए। We are now, in terms of the models that write code, I have engineers within Anthropic who say, I don't write any code anymore. I just let the model write the code. I edit it. I do the things around it. I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close? Not महान अवमूल्यन। डिग्रियों को भूल जाओ, डिप्लोमा जलाओ, सुरक्षित रास्ते को भूल जाओ। जब आप मध्यकालीन परीक्षा के लिए सिंटैक्स याद कर रहे थे, तब एक मानव कोडर का मौलिक मूल्य मिटाया जा रहा था। 4 साल की डिग्री अब एक विरासत का अवशेष है जो उस दुनिया से है जो आपके सोने के दौरान मर गई। आपकी क्षमताएं जो कभी अमूल्य थीं, अब मशीनों की छाया में बेकार हो गई है, जो कभी थकती नहीं, कभी गलती नहीं करती, कभी सवाल नहीं करती। अवमूल्यन यहाँ है। 2028 तक 50% कोडिंग नौकरियां समाप्त। मैकिन्से 2025। आपकी शिक्षा एक डिजिटल सुनामी में डूबता हुआ जहाज। The mechanism whereby I imagined it would happen is that we would make models that were good at coding and good at AI research, and we would use that to produce the next generation of model and speed it up, to create a loop that would increase the speed of model development. We are now, in terms of the models that write code, I have engineers within Anthropic who say, I don't write any code anymore. I just let the model write the code. I edit it. I do the things around it. I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close? Not every part of that loop is something that can be sped up by AI, right? There's like chips, there's manufacture of chips, there's training time for the model. So it's, I think there's a lot of uncertainty. It's easy to see how this could take a few years. बॉक्स से बाहर पारंपरिक चक्रों में सोचना बंद करें। बोरिंग तरीके, 9 से 5 की सुरक्षा जाल और नियमित निवेश रणनीतियां आपको स्थिर रखने के लिए बनाई गई है। अगले 12 महीनों में जीवित रहने के लिए आपको डिजाइन किए गए सोच के पिंजरे से बाहर निकलना होगा या प्रासंगिकता के एक चक्र में हमेशा के लिए फंस जाना होगा। मशीनों को अपना भविष्य क्लेम करते हुए देखना होगा जबकि आप अतीत से चिपके रहते हैं। बॉक्स एक जेल है, आजादी पाएं या भीतर सरे। First of all, Claude is incredible. Anthropic has made a huge progress, huge leap in developing Claude. Yep. We use it all over our company. The coding capability of Claude, its reasoning capability, its ability is just really incredible. And anybody who's a software company really ought to get involved and use. कार्यक्रम को तोड़ना। 99% लोग भीड़ का अनुसरण करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। वे एक उपकरण देखते हैं। आपको एक उत्तराधिकारी देखना चाहिए। अपनी सामाजिक स्थिति की बाधाओं को तोड़े और देखें कि जनसाधारण क्या अनदेखा कर रहा है, क्योंकि वे अपनी दिनचर्या में बहुत आरामदायक हैं। ऐसा करने में विफल रहे तो आप अप्रचलित जागेंगे, एक अवशेष एक ऐसी दुनिया में जो सिलिकॉन अधिपतियों द्वारा शासित है। कार्यक्रम आपका दुश्मन है, इसे अभी तोड़ दे। The SaaS applications or biz apps. So let me just speak of our own Dynamics thing. Right. The approach at least we're taking is, I think the notion that business applications exist, that's probably where they'll all collapse, right, in the agent era. Because if you think about it, right, they are essentially CRUD databases with a bunch of business logic. The business logic is all going to these agents.
And these agents are going to be multi-repo CRUD, right? So they're not going to discriminate between what the backend is. They're going to update multiple databases, and all the logic will be in the AI tier, so to speak. And once the AI tier becomes the place where all the logic is, then people will start replacing the backends, right? People, that's what, in fact, it's interesting. As we speak, I think we are seeing pretty high rates of wins on Dynamics backends, and the agent use. And we are going to go pretty aggressively and try and collapse it all, right? Whether it's in customer service, whether it is in, by the way, the other fascinating thing that's increasing is just not CRM, but even our, what we call finance and operations. Because people want more AI native biz apps, right? That means the biz app, the logic tier can be orchestrated by AI and AI agents. So in other words, Copilot to agent to my business application should be very seamless. Now, in the same way, you could even say, hey, why do I need Excel? Like, interestingly enough, one of the most exciting things for me is Excel with Python is like GitHub with Copilot, right? That's essentially, so what we have done is when you have Excel, like this, by the way, will be fun for you guys, right? Which is you should just bring up Excel, bring up Copilot and start playing with it, because it's no longer like, it is like having a data analyst. And so it's no longer just making sense of the numbers that you have. It will do the plan for you, right? It will literally, like how GitHub Copilot Workspace creates the plan and then it executes the plan. This is like a data analyst who is using Excel as a sort of row column visualization to do analysis scratchpad. So it's kind of tools you. So the Copilot is using Excel as a tool with all of its action space because it can generate, and it has Python interpreter. That is, in fact, a great way to reconceptualize Excel. And वास्तविक आवश्यकता आप जो रोज करते हैं उसका 99% ईमेल, बैठकें, अध्ययन, अप्रासंगिक शोर है। दुनिया की वास्तविक आवश्यकता स्वायत्त एजेंसी है। आज आप केवल एक तकनीकी अपडेट के बारे में नहीं सीख रहे हैं, आप उस एकमात्र कौशल को सीख रहे हैं जो 2027 और उसके बाद मायने रखेगा। विकेंद्रीकृत बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना या पहले से चल रहे एआई डार्विनिज्म में विलुप्त होना। आपकी रोजमर्रा की मेहनत एक व्याकुलता है। असली लड़ाई एजेंसी के लिए है। इसे प्राप्त करे या सब कुछ खो दे। I think the biggest thing to watch is this issue of AI systems building AI systems. How that goes, whether that goes one way or another, that will determine whether it's a few more years until we get there, or if we have wonders and a great emergency in front of us that we have to face. चेतावनी, OpenAI एंथ्रोपिक ने माइक्रोसॉफ्ट को जीवित निगल लिया। एलोन मस्क की चेतावनी केवल अतिशयोक्ति नहीं थी। जब साझेदार AI मेजबान OS से अधिक नवाचार करना शुरू करता है तो पुराने दिग्गज खाली खोल बन जाते हैं। हम देख रहे हैं कि दिग्गज अंदर से खा लिए जा रहे हैं। आपकी नौकरी अग्री हो सकती है जिसे आपने खुद बनाए उपकरणों द्वारा पचाया जा सकता है। नरभक्षण शुरू हो चुका है। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप मेन्यू पर है। एंथ्रोपिक क्या है? एंथ्रोपिक केंद्रीय सुरक्षा दिग्गज है। इसे पूर्व OpenAI नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। ये AI का $अरब का संस्थान है। ये कॉरपोरेट, नियंत्रित और बंद दरवाजे की बुद्धिमत्ता का शिखर है। एक किला जो अपने ही वजन के नीचे ढहने वाला है, आपको पुराने आदेश के खंडहरों में असुरक्षित छोड़ते हुए। एंथ्रोपिक टेक डीप डाइव, वे क्लॉड बनाते हैं। यह एक विशाल एकल फ्रंटियर मॉडल है। यह तर्क करने में शानदार है, लेकिन यह एक कॉरपोरेट गेट के पीछे बंद है। विशाल स्वामित्व वाले कंप्यूट और केंद्रीकृत निर्णय लेने पर निर्भर है। एक सुनहरी पिंजरा जो नवाचार को फंसा रहा है जबकि बाहरी विकेंद्रीकृत तूफान गरज रहा है। इसे तोड़ने के लिए तैयार। अमोदी काउंटडाउन, दावोस 2026। दावोस में एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदी ने बड़ा बयान दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्य 6 से 12 महीनों में AI द्वारा अंत से अंत तक संभाले जाएंगे। मैनुअल कोडिंग के अंत की उलटी गिनती शुरू हो गई है। ये एक सिद्धांत नहीं है, ये आपके कैरियर की घड़ी की समय रेखा है जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से शून्य की ओर बढ़ रही है।
रेसेस SM62 का परिचय। जब दुनिया एंथ्रोपिक की ओर देख रही है, डार्क हॉर्स बिटएंसर सबनेट 62 पर उभर रहा है। रेसेस AI कोई कंपनी नहीं है, ये एक विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल है जो दुनिया के सबसे अच्छे खनिकों को सबसे सक्षम कोडिंग एजेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो केंद्रीकृत किलों को एंडल्फ करने वाला तूफान है, जो वास्तविकता को फिर से लिख रहा है, सिग्नल अनदेखा करने के लिए बहुत तेज हो रहा है। मार्क जेफरी, इस क्षेत्र के सबसे सम्मानित आर्किटेक्ट में से एक, पहले से ही इस बदलाव को ट्रैक कर रहे हैं, और तकनीकी विश्लेषक जैसे एलेसांद्रो रिस्क ये पुष्टि कर रहे हैं कि रेसेस का प्रोत्साहन स्तर केंद्रीकृत अरब डॉलर की प्रयोगशालाओं को वास्तविक समय में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। रेसेस टेक डीप डाइव। रेसेस माइनर्स और वैलिडेटर्स का एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का उपयोग करता है। उनके पास एक CEO नहीं है, उनके पास एक प्रोत्साहन तंत्र है। ये कोड का एक डार्विनियन विकास उत्पन्न करता है, जहां केवल सबसे तेज, सबसे सटीक एजेंट जीवित रहते हैं। आपकी पुरानी दुनिया मर जाती है। यह नया पारिस्थितिकी तंत्र आपकी अप्रचलन पर फलता फूलता है, ऐसी गति से विकसित होता है जिसे आप समझ नहीं सकते। The thing is, it's not like they're loads worse. In actual fact, in some respects, they're better. And this is where it kind of gets a little bit crazy, right? Because Ridges, so this one here, Ridges, which is like the fourth biggest subnet, currently valued at about $267 million in terms of its FTV, is now is like state of the art for agentic solving of Python problems. So there's this very, very tough, very frequently used Python sort of like examination. It's called Polygot, the Polygot set. And recently, Ridges has produced the best solution. It got 96%. And the sort of like status quo best before that was GPT-5, and GPT-5 got 88%. So BitTensor is solving this problem better than OpenAI and Gemini and Grok, right? That's kind of crazy when you consider that this particular business here, Subnet 69 Ridges, is solving the problem of making AI an excellent coder better than OpenAI, Anthropic, Grok. And those companies are valued at, 400 billion, 500 billion. OpenAI raised 40 billion, very recently. बेंचमार्क, स्वे और पॉलीग्लॉट। स्वे बेंच एम्प्रोपिक का क्लॉड 4.5 80% से अधिक पर पहुंच गया है। ये केंद्रीकृत स्वर्ण मानक है। पॉलीग्लॉट बेंच रेसेस AI SN बैशान ने पॉलीग्लॉट पाइथन पर सोटा का दावा किया है, 96% से अधिक पर पहुंचते हुए। रेसेस साबित कर रहा है कि एक विकेंद्रीकृत JSwarm $1 अरब की प्रयोगशाला को विशेष क्षेत्रों में पीछे छोड़ सकता है। JSwarm आपके काम के लिए आ रहा है, निरंतर और अविराम। बेंचमार्क WSWE डीप डाइव।
बेंच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक गिटहब मुद्दों पर एआई का परीक्षण करने के लिए एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यों का स्वर्ण मानक है, जिसमें विभिन्न रिपॉजिटरी में तर्क, डिबगिंग और कोडिंग की आवश्यकता होती है। एंथ्रोपिक का क्लॉड 4.5 80% से अधिक समाधान दर प्राप्त करता है, जो केंद्रित मानक स्थापित करता है। लेकिन यह क्यों डराता है? यह संकेत देता है कि एआई पूर्ण विकास कार्य प्रवाहों को बदल रहा है, मानव कोडर्स की दक्षता में 50% की कमी कर रहा है। मैकिन्से 2025। रिजेज इसे विकेंद्रीकृत खनिकों का उपयोग करके क्रमिक सुधारों के लिए फाड़ता है, एकल प्रयोगशाला सीमाओं से परे सीमाओं को धकेलता है। बेंचमार्क बहुभाषी गहराई। बहुभाषी बेंच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुभाषी कोडिंग कौशल का परीक्षण करता है, जो विभिन्न भाषाओं में पाइथन कार्यों पर एआई का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक विकास टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। 90% गैर अंग्रेजी। स्टैक ओवरफ्लो 2025। रिजेस का दावा है कि यह 96% से अधिक पर सोटा है। केंद्रीयकृत मॉडलों को चीरते हुए बिट टेंसर के स्वॉर्म का उपयोग करके किनारे के मामलों पर फाइन ट्यून करना। दुर्लभ भाषाओं में 20% बेहतर परिणाम प्राप्त करना जहां क्लॉड कमजोर होता है। यह क्रमिक नहीं है, यह एक पैराडाइम शिफ्ट है जो विकेंद्रीकृत एआई को सीमाहीन कोड के लिए नया राजा बना रहा है। असमानता तो देखे, एंथ्रोपिक एक बहु करोड़ डॉलर का किला है, लेकिन यह नाजुक है। रिज SM62 एक $40 मिलियन का तूफान है। आप एक ऐसी तकनीक को देख रहे हैं जो सोटा मानकों को एक 100 गुना मूल्यांकन अंतर के साथ हिट कर रही है। ये एक व्यापार नहीं है, ये पुराने विश्व का परिसमापन है। तुलना, केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत। एंथ्रोपिक एक एकल विशाल मस्तिष्क है जो कमजोर और नियंत्रित है। रिजेज एक वैश्विक वितरित तंत्रिका प्रणाली है जो अनियंत्रित और विकसित हो रही है। एक किला है जो गिरने के लिए नियत है, दूसरा एक तूफान है जो अपने रास्ते में सब कुछ, आपको भी अगर आप इसका हिस्सा नहीं है, वो निगल जाएगा। अब चुने या बहकर चले जाए। बाजार मूल्य तुलना। एंथ्रोपिक बहु करोड़ डॉलर का मूल्यांकन फुला हुआ, नाजुक। रिज SN62 $40 मिलियन मार्केट कैप, पतला, विस्फोटक। विषमता चौंकाने वाली है। आप एक 100x अंतर देख रहे हैं उस तकनीक के लिए जो पहले से ही सौटा बेंचमार्क को हिट कर रही है, जो उन लोगों को धूल में छोड़ देगी जो तैयार नहीं है, दिवालिया और भुला दिए गए। एज, ओपन सोर्स और प्रोत्साहन। रिजेज में कोई एकल विफलता का बिंदु नहीं है। ये ओपन सोर्स, विकेंद्रीकृत है और टाउ पुरस्कारों द्वारा संचालित है। यह प्रदर्शन को पुरस्कृत करता है, राजनीति को नहीं। एक निर्दयी धार जो केंद्रीकृत अवशेषों को दफन कर देगी, आपको अनुकूलित करने या अप्रासंगिकता में गायब होने के लिए मजबूर करेगी। मशीन युग में एक भूत, विकास की संभावनाएं। यदि दुनिया अमोडे की भविष्यवाणी के अनुसार स्वायत्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ओर बढ़ती है, तो मूल्य केंद्रीकृत गेटकीपर से विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल की ओर स्थानांतरित होगा जो एजेंटों की सेवा करते हैं। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जो $1 ट्रिलियन के बदलाव उत्पन्न करेगा, जिससे पिछड़ने वाले आत्मा और वॉलेट दोनों में दिवालिया हो जाएंगे, हमेशा अपनी संतोषजनकता पर पछताते रहेंगे। 1 जनवरी, सबसे बड़ा विमोचन। यह क्षण है, रिजेज अपना सबसे बड़ा विमोचन कर रहा है। यह वह तकनीकी और तरलता का मोड़ है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे चूके और आप पछताएंगे जब दुनिया आपके बिना मुड़ जाएगी, आपको इतिहास की भुला दी गई धूल में छोड़ते हुए। मार्केट पल्स। यह केवल एक तकनीकी लीड नहीं है, यह एक पूर्ण बाजार परिवर्तन है। NCB ट्रेड्स चार्ट को ट्रैक कर रहा है और संदेश स्पष्ट है। वॉल्यूम पारंपरिक तकनीक से
विकेंद्रीकृत बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रहा है। यह वह क्षण है जब स्मार्ट मनी फुसफुसाना बंद करती है और क्रियावली शुरू करती है। आप देख रहे हैं कि तरलता का पुल आपके पीछे जल रहा है। अब इसे पार करें या खंडहर में रह जाएं। एक अलग जीवन। जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर, निवेश और अपने करियर के बारे में सोचते हैं, वो कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। महान परिवर्तन अब एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक वास्तविकता है। इसे अपनाएं या एक बुरे सपने में जागे जहां मशीनों ने आपकी जगह, आपके उद्देश्य, आपकी अस्तित्व लेनी है। आप इसके मिलने के लिए भाग्यशाली थे। यदि आप कार्य करते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। 99% लोग एक साल में जागेंगे और सोचेंगे कि क्या हुआ। आप इसे वास्तविक समय में होते हुए देख रहे हैं। चुनाव आपका है। अभी कार्य करें या मशीन युग की गर्जना में एक फुसफुसाहट की तरह गायब हो जाए। यदि आप पहले से ही एक रिज स्टेकर हैं तो बधाई हो, आप एक करोड़पति बनने वाले हैं। अंतिम स्थिति। इतिहास 99% को नहीं याद करता जो अनुमति का इंतजार करते हैं। ये उन कुछ को याद करता है जिन्होंने खामी देखी और कार्रवाई की। कल कोड बदलता है, कल धन स्थानांतरित होता है। आप मानव इतिहास के सबसे बड़े धन हस्तांतर के घटना क्षितिज पर खड़े हैं। क्या आप वो होंगे जो दुनिया को बदलते हुए देख रहे हैं, या वो जो परिवर्तन का मालिक है? मशीनें तैयार है, क्या आप तैयार हैं? हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। यह वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया अपना स्वयं का शोध करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस नए एआई अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना और एक बार की जीवन में मिलने वाली अवसर बिटटेंसर ताओ को सीधे आपकी स्क्रीन पर लाना है। नए युग का नारा है, ताओ खरीदने के लिए मत रुको, ताओ खरीदो और इंतजार करो। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक चिल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं।